So good noon everyone, and let's continue with the B tree. We've already started B tree. B tree is nothing but a specialized M-way search tree. What is M-way search tree? A node which contains more than one values. So when we say M-way, actually it has maximum M pointers and M minus 1 values. Minimum may vary from 1 to M. So when we impose some constraints on minimum part, we have a B tree. And what is B tree? So B tree is nothing but a balanced M-way search tree, we can say, where maximum we can have M pointers and minimum we can have M by 2 half pointers. So the number of values may vary, maximum M minus 1 values and minimum M by 2 minus 1 values. We have also seen insert operation. Insertion will be done always at a leaf node, and then after inserting a value, we'll check what about the maximum constraint. If no problem there, then we are done with the process. If there is a problem, we are going to split that node from the median value. Median value will be propagated to the parent node. Parent node will receive that value. If there is no problem with the parent node, then done. If there is a problem in parent node, then you are going to split that parent node and median value will be propagated and chain will occur. So we have seen that insert process also. Right? Now let's go through the delete operation today. Let's have a look at delete operation on B tree. So at the end, B tree is a search tree. B tree is M-way search tree. So it is a search tree. So deletion operation on a B tree will be performed just like a search tree. You search that value, you found a node, then you check whether that node is internal node or a leaf node. You search that value, you'll find that value somewhere in the node, then you decide भाई वो node internal है या leaf है. मतलब जो बाइनरी सर्च ट्री में केस बनाए थे हमने, नो चाइल्ड, वन चाइल्ड, टू चिल्ड्रन, समथिंग लाइक दैट वी आर गोइंग टू सी हियर. नो चाइल्ड मतलब लीफ नोड, वन चाइल्ड या तो फिर टू चिल्ड्रन, तो वो हो जाएगा इंटरनल नोड. अब बी ट्री की अगर बात करते हो, देन दिस इज एम-वे सर्च ट्री. सो हियर देयर इज नथिंग लाइक 0, 1 and 2. You might be having more than 2 children also. So we simply talk about internal node and a leaf node. As long as B tree is a perfectly balanced tree, okay, if that is internal node, then definitely you will find both the children, left and right side. If it is leaf node, तो फिर वो last है कोई child नहीं होगा, so no child. So what we do here, we search a value and then we find out what is that node. If that node is internal node, you will go for in order successor or a predecessor value. Predecessor या तो successor लेके आओ, replace करो, and then go and delete that predecessor or a successor. मतलब ये कौन सा केस हो गया? टू चिल्ड्रन वाला केस. predecessor या तो फिर successor लेके आओ, replace करो, and then go and delete that predecessor or a successor. डेफिनेटली वो प्रीडिसेसर या सक्सेसर कहाँ पे होगा? लीफ पे, तभी वो प्रीडिसेसर या सक्सेसर बनेगा. सो इट विल बी ऑन द लीफ नोड. तो जब उसको डिलीट करने जाओगे तो आपको मिलेगा केस लीफ नोड वाला. सो व्हेन यू डिलीट अ वैल्यू एंड इफ दैट नोड इज अ लीफ नोड, तो पहले तो आप सिंपली वो वैल्यू को डिलीट कर दो, डिलीट दैट वैल्यू. आफ्टर डिलीटिंग यू चेक द मिनिमम कंस्ट्रेंट. इंसर्ट करते वक्त मैक्सिमम देखा था, तो डिलीट करते वक्त मिनिमम चेक करेंगे. सो आफ्टर यू डिलीट अ वैल्यू, यू चेक द मिनिमम कंस्ट्रेंट व्हिच मस्ट बी m by 2 वैल्यूज. बी ट्री के लिए m by 2 पॉइंटर्स और m by 2 minus 1 वैल्यू होनी चाहिए, राइट? सो इट मस्ट बी फॉलोड. इफ दैट कंस्ट्रेंट इज बीइंग फॉलोड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, काम खत्म. But if the deleted value is in a leaf node, and when you delete that value, it contains less than the minimum number of keys. एक बार आपने वैल्यू डिलीट कर दी, उसके बाद
उसके पास मिनिमम कंस्ट्रेंट से कम वैल्यू बची है, then we have a problem. So if minimum constraint is not being followed, then क्या करेंगे? We'll go and borrow a value from sibling. We will go and borrow one value from the sibling. अगर पैसे खत्म हो गए तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने भाई के पास जाऊंगा, भाई मेरे पास पैसे खत्म हो गए, थोड़े पैसे चाहिए मुझे. So we will go and borrow the value. We will borrow one element from left or right sibling. Let us go to the left side first. पहले लेफ्ट सिबलिंग के पास जाएंगे और लेफ्ट सिबलिंग के पास से हम एक वैल्यू बोरो करेंगे. Now if that left sibling is having more than the minimum values, मतलब वो खुद भी अपने पैसे देखेगा ना, मेरा भाई भी देखेगा, भाई मेरे पास अगर ज्यादा है तो दूंगा, अगर उसके पास भी ज्यादा पैसे नहीं है तो क्या बोलेगा? भाई मेरे पास उतने ही पैसे हैं जितने मुझे चाहिए, सो मैं नहीं दे सकता. सो वी गो टू लेफ्ट सिबलिंग, और if that left sibling is having more than minimum values, तो हम वहां से लार्जेस्ट की लेके आएंगे. विल ब्रिंग द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड. लार्जेस्ट क्यों? क्योंकि ये सर्च ट्री है. सर्च ट्री में ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए. सर्च ट्री में ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए. सो अगर मैं लेफ्ट साइड जाता हूं तो सारी की सारी वैल्यू छोटी होगी, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू मैं यहां पे लेके आऊंगा. सो फ्रॉम द लेफ्ट साइड वी विल ब्रिंग द लार्जेस्ट की. अब मान लो कि लेफ्ट सिबलिंग ने मना कर दिया, देन इन दैट केस वी गो टू द राइट सिबलिंग. अगर लेफ्ट सिबलिंग मना करता है तो दूसरे भाई के पास जाओ, गो टू द राइट सिबलिंग. अगर राइट सिबलिंग के पास मोर देन मिनिमम कंस्ट्रेंट वैल्यूज है, देन यू ब्रिंग द स्मॉलेस्ट की फ्रॉम द राइट साइड. राइट साइड से छोटी वैल्यू बोरो करोगे. सो वी गो टू द लेफ्ट, उसने मना कर दिया, वी गो टू राइट. अगर वो भी मना करता है तो then we are going to merge those nodes. We are going to merge those nodes. अरे भाई किसी भाई के पास पैसे नहीं है, ऐसा करते हैं एक साथ रहते हैं, एक ही घर चलेगा तो कम खर्चा होगा. We merge those nodes. तो जिस नोड को प्रॉब्लम है उसको किसी एक साइड मर्ज करो. Now all these processes, okay, so if none of the sibling is having enough value, then else part we merge those node and bring the parent. So all these processes, borrowing a value or merging a process, will go through the parent. पापा बीच में बैठेंगे, वो ध्यान रखेंगे भाई बेटा क्या कर रहा है. So if we borrow a value, we borrow that via parent. If we merge two nodes, तो parent नीचे आएगा. So that process will happen. Let us see in practice. एक example देखते हैं. And let me have this order 6. Okay, let's go for order 6 B tree. And we want to focus on delete operation. So let me create a B tree first here. एक B tree में मुझे मतलब मैं डायरेक्ट बना के दे देता हूँ. Then we will see the delete operation. So let's say we have okay. So look, every time what you do when you are talking about B plus or 2 3 or whatever trees, you always go for pointers and values
minimum and maximum. Always keep it aside so there won't be any confusion. So if it is 6 order 6 matlab maximum 6 pointers and minimum 6 by 2 means 3 pointers must be there. Minimum 3 pointer, maximum 6 pointer. So that indicates maximum 5 values and minimum 2 values must be there. And now have a look at the given tree. Is it B tree? Yes or no? Yes. मिनिमम 3 पॉइंटर्स, सबसे छोटा नोड जो है उसके पास है. मैक्सिमम 6 पॉइंटर. ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसा एक भी नोड नहीं है जिसके पास 6 पॉइंटर हो, लेकिन हाँ विच इंडिकेट्स इट हैज अ रूम. इंसर्ट ऑपरेशन देखा था. यू गो एंड फाइंड अ नोड. अगर उस नोड के पास मैक्सिमम से कम पॉइंटर्स है मतलब इट हैज अ रूम, यू कैन इंसर्ट अ वैल्यू देयर. Okay, so let's say given tree is a 6-way B tree and we want to delete something here. The first example, let's say we want to delete 24. Let's say we want to delete 24. Search that value. कैसे search करोगे? We always start with from the root. 24 and 10 compare करो. 24 is greater, so we go to the right side. We go to right side, not the right child. क्योंकि एक नोड में एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, तो अभी मैं सेम नोड के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उसके साथ कंपेयर करूंगा. So I'll go to right side. 24 and 19. Still 24 is greater than 19. We go to right side. We compare 24 and 25. 24 is less than 25. When we have a less condition, हम left pointer पकड़ेंगे. So 25 का left pointer पकड़ो और उस नोड पे जाओ. Yes. इवन इंसर्ट भी आप लीफ नोड में करते हो, लेकिन वो लीफ नोड पकड़ोगे कैसे? सर्च करना पड़ेगा. सर्चिंग ऑपरेशन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड. आपको इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, आपको ढूंढना तो पड़ेगा कि भाई उसकी जगह कहाँ. इंसर्ट करना है तो वेर इज द स्पेस, और डिलीट करना है देन वेर इज दैट वैल्यू. ऑलवेज यू आर गोइंग टू सर्च इट, राइट? ओके, सो 25 का लेफ्ट पकड़ो, गो टू दैट पॉइंटर, यू हैव अ न्यू नोड. नीचे नोड पे आ गए. सो वी कंपेयर 24 विद 20. ग्रेटर, राइट साइड जाएंगे. 24 and 23. ग्रेटर, राइट साइड जाएंगे. 24 and 24 फाउंड दैट वैल्यू. ओके, सो when you repeat this searching process और मान लो कि सब कुछ खत्म हो गया, आपका नोड भी खत्म हो गया, एक भी पॉइंटर नहीं पकड़ा, then value not found. Now at present we found that value. Once you found that value, you are going to delete it. अब डिलीट करते वक्त हमें ये देखना है इंटरनल है या लीफ है. Now this is the example of leaf. So अगर लीफ नोड है then delete the value, and after deleting it check the minimum constraint. After you delete 24, ठीक है, 24 को डिलीट कर दिया, then you check the minimum constraint. 2 वैल्यू होनी चाहिए, इसके पास 2 वैल्यू है. Yes, it is. काम खत्म. The simplest example of delete operation. Okay. Now next one. Let's say we want to delete 20. Let's say we want to delete 20. Again 20 को सर्च करोगे, 20 greater than 10 राइट जाएंगे, 20 greater than 19 राइट जाएंगे, 20 less than 25 तो लेफ्ट पॉइंटर पकड़ेंगे. We go to that node. 20 is equals to 20. We found the value. कौन सा नोड है? लीफ नोड.
अगर लीफ नोड है तो 20 को डिलीट करो, एंड आफ्टर यू डिलीट दैट वैल्यू चेक द मिनिमम कंस्ट्रेंट. मिनिमम कंस्ट्रेंट अगर फॉलो नहीं होता है देन वी बोरो अ वैल्यू फ्रॉम सिबलिंग. अगर मिनिमम कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं होता है तो पहले लेफ्ट सिबलिंग के पास जाओ और उससे एक वैल्यू मांगो. कौन सी वैल्यू मांगेंगे? लार्जेस्ट वन. सो उसके पास से हम मांगेंगे 15. भाई मुझे एक वैल्यू चाहिए तेरे पास से. अब लिसन, वी कैन नॉट हैव 15 हियर डायरेक्टली. सी, वी कैन नॉट हैव 15 डायरेक्टली एट दिस प्लेस क्योंकि वो 19 से छोटा है. इट कैन नॉट बी ऑन द राइट साइड ऑफ 19. दिस इज द रीजन पेरेंट को बीच में रखना पड़ेगा. सो व्हाट वी डू हियर, वी ब्रिंग अ वैल्यू वाया पेरेंट, मतलब 15 ऊपर जाएगा और 19 नीचे आएगा. Now that is the process we have to do here. We borrow a value via parent. तो सिबलिंग के पास जो वैल्यू है वो ऊपर जाएगी और ऊपर पेरेंट में जो है वो वैल्यू नीचे आएगी. सो वी ब्रिंग 19 डाउन and we send 15 to the parent one. ओके, 15 गया ऊपर, 19 आ गया नीचे. अब देखो मिनिमम कंस्ट्रेंट फॉलो हो रहे हैं. इसके पास दो वैल्यू, इसके पास भी दो वैल्यू, चलेगा, कोई बात नहीं. राइट? नेक्स्ट, let's say we want to delete 25. We want to delete 25. 25 greater than 10, राइट साइड जाएंगे. 25 greater than 15, राइट साइड जाएंगे. 25 equals to 25, we found the value. कहां पे मिला? इंटरनल नोड. 25 कहां पे मिला आपको? इंटरनल नोड. सो इफ यू वांट टू डिलीट 25 तो एक्चुअली आप उसको डिलीट नहीं करते हो. व्हाट यू डू हियर, you find in order predecessor or in order successor. इसको लेके आओ, रिप्लेस करो एंड देन गो डिलीट दैट वैल्यू. सो इस केस में लेट्स से वी गो फॉर इन ऑर्डर सक्सेसर. इन ऑर्डर सक्सेसर क्या मिलेगा? 27. सो वी ब्रिंग 27 हियर. 27 को वहां पे लाएंगे एंड देन 27 को डिलीट करने जाएंगे. That is the process. So 27 डेफिनेटली लीफ नोड पे ही रहेगा, तभी वो सक्सेसर या प्रेडिसेसर बनता है. ठीक है, तो 27 इज इन अ लीफ नोड, उसको डिलीट करो एंड देन यू चेक द मिनिमम कंस्ट्रेंट. नो प्रॉब्लम, काम खत्म. So that was the example for internal node. And now let us have a look at the most complex one. Let's say I want to delete 13. Search that value. 13 is greater than 10, right side जाएंगे. 13 is less than 15. जब less मिलता है तो left pointer पकड़ो. So left pointer पकड़ के child में जाएंगे. Now 13 is greater than 11, right side जाओ. 13 is equals to 13. We found the value. कौन सा नोड है? लीफ नोड. अगर लीफ नोड है तो आसानी से वैल्यू डिलीट कर सकते हो. डिलीट दैट वैल्यू एंड चेक द मिनिमम कंस्ट्रेंट. प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो पहले वो भाई के पास जाएगा. गो टू द लेफ्ट सिबलिंग. अरे भाई मेरे पास उतने ही पैसे हैं जितने मुझे चाहिए. आई डोंट हैव एक्स्ट्रा मनी. तो लेफ्ट सिबलिंग बोलेगा आई डोंट हैव एक्स्ट्रा वैल्यूज. ठीक है, लेफ्ट सिबलिंग के पास इनफ वैल्यू नहीं है तो वो जाएगा राइट सिबलिंग के पास. अब राइट सिबलिंग बोलेगा अरे भाई मेरे पास भी इतनी ही वैल्यू है जितनी होनी चाहिए. सो हियर
none of the sibling is having enough values. लेफ्ट और राइट दोनों के पास जितनी होनी चाहिए उतनी ही वैल्यू है, उससे ज्यादा नहीं है. So in this case, we are going to merge this node with one of the siblings. लेफ्ट या तो राइट किसी के भी साथ इसको मर्ज करो. You merge this node with a sibling. मान लो कि आप उसको लेफ्ट सिबलिंग के साथ मर्ज करते हो. Three five was the left sibling. So 3 5 and 11 आप इन दोनों को merge करते हो. Now when you merge it, it becomes a single node. If that becomes a single node तो left right की जरूरत ही नहीं है. तो बीच में जो parent था वो भी नीचे आएगा. We will bring that parent value down. इंसर्ट में जब आप स्प्लिट करते थे तो बीच की वैल्यू ऊपर जाती थी. डिलीट में जब आप मर्ज करोगे तो ऊपर की वैल्यू नीचे आएगी. द रिवर्स प्रोसेस. सो विल ब्रिंग दैट वैल्यू 10 डाउन. नीचे लेके आओ. अगर उसको नीचे लेके आए तो वो पेरेंट के पास तो बचेगा नहीं. अगर बचेगा नहीं तो 15 का लेफ्ट एक ही पॉइंटर चाहिए आपको ये नोड पॉइंट करने के लिए. So we bring that value down and we merge two nodes here. Parent value को नीचे लाओ और दो नोड को merge कर दो. That is the last process. अब parent के पास से आप एक वैल्यू नीचे लाते हो तो parent में देखना पड़ेगा भाई, if that parent node has a problem तो आगे कुछ process करेंगे. So when we bring that value downward, we will check the minimum constraint on parent node. अगर parent node को कोई problem नहीं है तो काम खत्म. अगर parent node को problem है, left sibling, right sibling, none of the sibling is having enough values, तो वो parent node भी merge होगा और उसके parent की value नीचे आएगी. So that will be the chaining process. जब लास्ट रूट वाला वैल्यू नीचे आता है तो ट्री की हाइट डिक्रीज होती है. सो व्हेन रूट नोड गेट्स स्प्लिट, इंसर्ट में जब रूट नोड स्प्लिट होता है तो हाइट इंक्रीज होती है. और डिलीट में जब रूट नोड मर्ज होता है चाइल्ड के साथ तो हाइट डिक्रीज होती है. नाउ दैट्स द ओनली केस व्हेन there will be a change in your height. Till that time, your entire tree is perfectly balanced with the fixed size. Okay? So, अगर आप यहां पे 30 को डिलीट करोगे तो क्या होगा? 30 को अगर डिलीट करते हो तो लेफ्ट सिबलिंग के पास इनफ वैल्यू नहीं है. Okay? If I delete 30 तो लेफ्ट सिबलिंग के पास इनफ वैल्यू नहीं है. राइट सिबलिंग तो है ही नहीं. सो नन ऑफ द सिबलिंग इज हैविंग इनफ वैल्यूज. वी आर गोइंग टू मर्ज दिस टू नोड एंड विल ब्रिंग 27 डाउन. 27 को नीचे लाओगे आप. आफ्टर डिलीटिंग आफ्टर ब्रिंगिंग दैट 27 डाउन, चेक द मिनिमम कंस्ट्रेंट. रूट में मिनिमम कंस्ट्रेंट फॉलो हुआ. रूट इज एक्सेप्शनल केस. याद करो, रूट नोड अगर है तो वो एक्सेप्शनल केस है, उसके बारे में मिनिमम देखने की जरूरत नहीं. हाँ, अगर वो इंटरनल नोड होता तो मिनिमम कंस्ट्रेंट देखते. कीप दिस इन योर माइंड. रूट इज ऑलवेज एक्सेप्शनल केस फॉर मिनिमम कंस्ट्रेंट. रूट में एक वैल्यू भी अगर है तो चलेगा. हाँ, बाकी कोई इंटरनल नोड है तो एक वैल्यू नहीं चलेगी, दो होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज 6-way B tree. Well, that's the entire delete operation on B tree. फिर से एक बार देख लो. सर्च अ वैल्यू.
अगर वो वैल्यू इंटरनल नोड में है तो प्रीडिसीजर या सक्सेसर लाएंगे, अगर वो वैल्यू लीफ नोड में है तो डायरेक्ट डिलीट डिलीट करने के बाद मिनिमम कंस्ट्रेंट चेक करो, प्रॉब्लम है तो लेफ्ट सिबलिंग से वैल्यू बोरो करो वाया पेरेंट। लेफ्ट सिबलिंग के पास इनफ वैल्यू नहीं है तो आप जाओगे राइट के पास, राइट सिबलिंग के पास से एक वैल्यू बोरो करो वाया पेरेंट। अगर दोनों सिबलिंग मना करते हैं तो किसी एक के साथ आप मर्ज करोगे और पेरेंट वैल्यू को नीचे लाओगे। दैट्स द एंटायर डिलीट ऑपरेशन and we have seen few examples on B-tree delete. So I'll take a pause here. If you have any query or question, you may ask. When we go and when we see internal node, take the case of internal node, it only says replace with in order previous replace then delete that previous Okay, so that was the delete operation. Any more questions? All lectures are uploaded in YouTube channel. In your portal, you'll find those lectures now within 1 or 2 days. But if you want all the lectures, you can directly go to YouTube channel. BTCE2 Live is the channel where you can find data structure playlist, and in that playlist, all lectures are available. BTech, BT, Computer Engineering, CE, 2, second year, live. BTCE2 live, no space in between. सब कुछ एक साथ में. So that's the YouTube channel. You can find data structure 21-22 का playlist पकड़ो. It will have playlist of previous year also. लेकिन अभी 21-22 वाला playlist पकड़ो, and in that playlist you'll have all the lectures. TC1, TC2 सारे क्लास के लेक्चर वहां पे मिल जाएंगे. You will find other faculty lectures also. अगर मेरे अच्छे नहीं लगते हैं, you can go for the other faculty. Okay, so that was the delete operation on B tree. Let us continue. Next is B plus tree. ठीक है, चैनल आप बाद में सर्च कर लेना. Come back to the class now. So next is B plus tree. अच्छा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, बाकी B tree जैसा है वैसा तो रहेगा ही. So what is B plus tree? Similar to B tree with minor difference. सबसे पहला difference है leaf nodes are always connected to each other. Those are linked to each other. Leaf node, only leaf node, remember. So all the leaf nodes are connected to
each other in a linked list manner. हर एक लीफ नोड जो है वो एक दूसरे के साथ एक लाइन में कनेक्टेड रहेगा. So that is the first difference. Now why do we do this? So B tree says you keep your data always in a leaf node. आपका डेटा जो है वो हर बार लीफ में ही रहना चाहिए, और अपने डेटा को कंटिन्यू रखने के लिए आप हर एक नोड को कनेक्ट कर दोगे. सो इट्स समथिंग लाइक एक बड़ा सा मूवी डाल रहे हो, आधा मूवी यहां पे रह गया और बाकी का मूवी अलग नोड में चला गया. इट कैन बी, इट मे हैपन, हो सकता है मूवी का जो इंडेक्स है वो 50 से बड़ा है, 65 से कम है, तो मूवी को स्टोर करना स्टार्ट तो आप यहां से करते हो, लेकिन वो मूवी इतना बड़ा है कि एक नोड में नहीं रख सकता, तो उसका पार्ट होगा. अब दूसरा पार्ट जो बना उसका की 65 से अगर बड़ा बनता है देन इट गोज इन दी अदर पार्ट. लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने मूवी प्ले किया तो आधा प्ले होके बंद हो गया. It has a connectivity, right? So okay, the first point, every leaf nodes are connected to each other, and B plus tree ये बोलता है कि आपका डेटा जो भी है वो always leaf node पे रहेगा. If I want to create 5-way B plus tree, let us assume we want to create 5-way B plus tree. अगर 5-way है तो करेक्ट, एंड वैल्यूज मैक्सिमम कितनी वैल्यू 4 और पॉइंटर 5. When you have started creating this B plus tree, it's a root node, and root node is always an exceptional case. चलेगा, कुछ देखेंगे नहीं, मैक्सिमम कंस्ट्रेंट फॉलो करेगा. सो मान लो कि यू हैव स्टार्टेड इंसर्टिंग वैल्यूज हियर. 1 डाला कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 डाला कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 डाला कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 डाला स्टिल यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट? So this is the node, this is a root node, this is still 5-way B plus tree. एक ही node है, leaf node connected, and leaf node has my data. So 1, 5, 10, 15 is my data. अभी वो leaf में. Let us assume you want to insert 17 now. 17 as a data आपको insert करना है. लीफ नोड ढूंढो जहां पे इंसर्ट कर सकते हो. मिल गया लीफ नोड, 17 डाल दिया, एंड देन यू चेक मैक्सिमम कंस्ट्रेंट, नॉट फॉलोड. अगर मैक्सिमम कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं होता है तो क्या करेंगे? वी स्प्लिट अ नोड फ्रॉम मीडियन, वी स्प्लिट अ नोड फ्रॉम मीडियन एंड उसको ऊपर भेजेंगे. यू विल क्रिएट अ न्यू रूट नोड. Do something like this. Now this was the process for B tree. अगर B प्लस है तो नोड, लीफ नोड कनेक्टेड रहने चाहिए, कनेक्ट तो कर दिए. हर एक लीफ नोड में आपका डेटा रहना चाहिए. व्हाट इज 10? अर्लियर 10 वाज माय डेटा. इज इट इन अ लीफ नोड? सो आई लॉस्ट माय डेटा. या गुम, खत्म. I lost my data 10. That should not happen. B प्लस ये बोलता है कि आपका डेटा लीफ में रहना चाहिए. तो फिर इंटरनल में क्या रहेगा? इंटरनल नोड्स should contain keys.
So here you will have a key value pair. Value is your data, and to search that data, whatever index you prepare, that index will have all the keys. अब अपनी बुक देखते हो तो बुक के अंदर सारे के सारे चैप्टर्स, डिटेल्स सब कुछ है. दैट डजंट मीन कि उसको उठा के आगे इंडेक्स में डाल दिया. आगे इंडेक्स में आप क्या रखते हो? सिर्फ टाइटल. वही टाइटल अंदर भी दिखता है ना. सो व्हाट यू डू हियर इज, when you split your node from median value, you are going to generate a copy of that median value. Your data remains as it is at a leaf node. उसकी एक कॉपी जनरेट होगी और उस कॉपी को आप ऊपर भेजोगे. Make sure this 10 is your data, whereas this 10 is your key now. So there is nothing like repetition. सर्च ट्री में हमने सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा था, नो डुप्लीकेशन इज अलाउड. हाँ, यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन नहीं है, बिकॉज वन इज योर डेटा whereas other one is a key. Fine. So what we do now, when we split a node, we are going to generate a copy of that median value. वो कॉपी एक्चुअली की बनेगी और उस की को आप ऊपर फॉरवर्ड करोगे. यू विल प्रोपोगेट अ की टू द पेरेंट नोड. अब ये प्रोसेस कब होगा? जब आप लीफ नोड को स्प्लिट करते हो. क्योंकि लीफ नोड में डेटा था, डेटा को ऊपर नहीं भेज सकता मैं, तो डेटा की कॉपी ऊपर भेजूंगा. सो what is insert operation on B plus tree? We always insert a data, और data leaf में रहना चाहिए, तो insert operation कहाँ पे होगा? Will always be done in a bottom level, always be done on a leaf node. So when you insert that value, if that leaf node overflow, अब node की जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ page, because when we talk about index we call it a page. अगर सिंपल ट्री की बात करते हो तो नोड है, उसी ट्री को अगर आप इंडेक्स बोलते हो then it is a page. So page is nothing but a node in tree, and B plus trees are mostly used to create indexes. So we call a page here. So if leaf page gets overflow, तो आप उसको स्प्लिट करोगे. हाँ, अगर लीफ स्प्लिट होता है तो वो तो डेटा है. देन वी जनरेट अ कॉपी ऑफ अ मिडल वैल्यू एंड वी प्रोपोगेट दैट कॉपी टू द नेक्स्ट पेज, मतलब उसके पेरेंट में लेके जाओ. दिस इज टू बी डन व्हेन वी स्प्लिट अ लीफ नोड. व्हाट इफ वी स्प्लिट इंटरनल नोड? इंटरनल नोड में डेटा नहीं है, क्या है वहां पे? कीज. ऑल इंटरनल नोड्स विल कंटेन की. की का रिपीटेशन क्यों करूं? की को खुद ही ऊपर भेज दूंगा तो चलेगा. इट्स नॉट अ डेटा. सो अगर इंडेक्स पेज, इंटरनल इंडेक्स पेज ओवरफ्लो होता है, देन यू स्प्लिट दैट नोड and you simply move middle element to the next page. अगर internal node को split करते हो तो middle value पुरानी तरह से ऊपर जाएगी. कॉपी जनरेट करेंगे जब लीफ नोड को हम स्प्लिट करते हैं. Okay, so let us see quickly the example here. If I say that I want to create 4-way B plus tree, 4-way B plus ट्री, तो मैक्सिमम 4 पॉइंटर, मिनिमम 2 पॉइंटर, मैक्सिमम 3 वैल्यूज, मिनिमम 1 वैल्यू होनी चाहिए. ओके, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माई B plus ट्री by inserting value 1 root node
ठीक है, एक वैल्यू चलेगा. देन आई गो एंड इंसर्ट 10, 2 वैल्यू नो प्रॉब्लम चलेगा. देन आई गो एंड इंसर्ट 17, 3 वैल्यूज, 4 पॉइंटर्स, स्टिल वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, चलेगा. नेक्स्ट लेट्स से वी इंसर्ट 23. लीफ नोड में 23 तो इंसर्ट हो गया, लेकिन वी हैव अ प्रॉब्लम हियर. मैक्सिमम कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम है. वेल इन दैट केस हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्प्लिट दिस नोड. अब ये लीफ नोड है, लीफ नोड को आप मीडियन से स्प्लिट करो. 4 में से मीडियन आप 10 या 17 कोई भी ले सकते हो. लेट अस पिक 10. सो आई एम गोइंग टू स्प्लिट दिस नोड फ्रॉम 10. अब ये वाला नोड अगर लीफ नोड है तो मुझे 10 की कॉपी जनरेट करनी होगी. बिकॉज इट इज अ लीफ नोड, आई एम गोइंग टू जनरेट अ कॉपी और उस कॉपी को पेरेंट में भेज देंगे. अगर पेरेंट कोई नहीं है तो नया पेरेंट जनरेट होगा. एंड वी स्प्लिट दिस नोड, बट स्टिल वी आर गोइंग टू कीप दैट 10 एज अ वैल्यू. Because we have generated copy, we are going to keep 10 in one of the leaf nodes. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 10 को कहां पे रखूं, लेफ्ट या राइट? यू हैव टू डिसाइड. कीज एंड डेटा, इक्वल वैल्यू को लेफ्ट रखना है, लेफ्ट रखो. इक्वल वैल्यू को राइट रखना है, राइट रखो. योर सर्च ऑपरेशन शुड हैपन अकॉर्डिंगली. जब आप वैल्यू को सर्च करने जाते हो तो एक्स्ट्रा कंडीशन लिख दोगे. इफ इट इज इक्वल आई विल गो टू लेफ्ट पॉइंटर, राइट? So let's keep it on a left side. So 10 is on the left side. Means finally you have 5, 10, 17, 23. And as long as this is a B plus tree, do not forget to link your leaf nodes. Okay? So this is the first part. Yes? Sorry? Only leaf nodes you have to connect. Internal node को कहीं पे connect नहीं किया. So index pages are not being connected. Leaf page मतलब data pages are going to be connected with each other. So likewise, let us assume that we have inserted multiple values and finally we have something like this one. We have tree something like let us assume we have something like this. अब एक पॉइंट है, आप बोलोगे कि सर हमने जब नोड स्प्लिट किया तो कॉपी जनरेट करके ऊपर भेजा इंटरनल नोड में. सो आप बोलोगे कि सर 20 नीचे तो कहीं दिखा ही नहीं. हाँ, when we have inserted 20 मतलब समथिंग वैल्यू 20 से स्प्लिट हुआ होगा, सो 20 का एक कॉपी जनरेट होके ऊपर चला गया. एंड देन आफ्टर सम टाइम 20 एज अ डेटा मैंने डिलीट कर दिया. When I delete a node, when I delete a value, I only delete a data. I'm not going to manage my index. Index will automatically be managed by operating system. हम डेटा डिलीट कर सकते हैं, इंडेक्स खुद ब खुद मेंटेन होगी.
सो 20 एज अ डेटा, मान लो कि आपने डिलीट कर दिया, उसकी की ऐसे ही पड़ी है. नाउ की इज ओनली यूज टू डिसाइड लेसर ऑन द लेफ्ट, ग्रेटर ऑन द राइट. 20 से आपको इतना पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड छोटी वैल्यू और राइट साइड बड़ी वैल्यू होगी. दैट्स द ओनली नीड ऑफ की टू 20. Okay, so let's say this is our current B plus tree, 4-way B plus tree. Link करवाना बाकी है, correct. So let us connect those nodes. And now we can say finally we have 4-way B plus tree here. And I want to insert 40 new data. Find a place, insert a value, check the maximum constraint. Problem है? If you have a problem, then you are going to split this node. Split करो. Because it is a leaf node, 33 से अगर split करते हैं तो उसका copy generate करेंगे. We'll generate a copy here. ठीक है. So 33 का copy generate होके जाएगा ऊपर. Let me draw that part one more time. So we have 5 and 10, 17 and 19, 24 and 25. Okay. Then we are going to split this node. We'll have 30 and 33, 35 and 40. All leaf nodes are connected. Then at a parent place, you already have 15, 20, 27. 15 left, 15, 20 middle, 20, 27 middle, 27 right. और 33 का जो कॉपी जनरेट किया आप भेजोगे उसको ऊपर. So we have generated 33 as a key and we send that value to the parent node. Parent node में जगह है तो रहेगा. If your parent node has some space, then finally we are done. We don't have any problem. But यहाँ पे क्या होगा? Parent node has a problem now, right? Parent node 3 वैल्यू और 4 पॉइंटर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 वैल्यू और 5 पॉइंटर हो चुके हैं. सो पेरेंट नोड हैज अ प्रॉब्लम. नाउ व्हेन योर पेरेंट नोड और इंटरनल नोड, अगर इंटरनल नोड स्प्लिट करना पड़े तो इफ यू स्प्लिट अप इंटरनल नोड तो कॉपी जनरेट नहीं करेंगे. इट इज ऑलरेडी की and we are going to propagate key to the upper level. Okay, no change in remaining part. And connect all the leaf nodes. So that is B plus tree insert operation. Major 2 changes. B से B plus में 2 changes हैं. पहला, सारे leaf node linked. दूसरा, data will be in the leaf. All internal nodes will have keys. अब ये डेटा और की मेंटेन करने के लिए हमें ये करना पड़ता है कि जब लीफ को स्प्लिट करते हैं तो कॉपी, इंटरनल को स्प्लिट करते हैं देन मूव. ओके, एनी क्वेश्चन? इंटरनल नोड लिंक नहीं करेंगे. ओनली योर डेटा नीड्स टू बी लिंक्ड. की लिंक करने की जरूरत नहीं.
क्योंकि की जरूरत हमें सिर्फ लेफ्ट राइट पकड़ने के लिए है, तो वहां पे बीच में लिंक होने की कोई जरूरत नहीं. हार्ड डिस्क में इंडेक्स. That's why I'm saying we are talking about index now. Page, leaf page, index page. So look, when you search something in your computer, you have hard disk 1 TB, 2 TB, even SSDs 512 GB. So you have large amount of data, and you are going to search something there. What do you think? Linear search सही रहेगा? It will take time. Binary search possible है? Not possible because our data is not sorted. हमारा data sorted नहीं है, right? So binary search is not possible. तो फिर क्या करोगे? अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो definitely it will go for linear search. Sometimes you have seen a message. विंडोज में अगर कुछ सर्च करते हो तो ऊपर एक येलो स्ट्रिप में मैसेज आता है. इंडेक्सिंग अगर एनेबल करते हो देन सर्च ऑपरेशन विल बिकम फास्टर. अगर इंडेक्स डिसेबल करते हो तो सर्च ऑपरेशन विल टेक टाइम. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसा मैसेज देता है कभी, अगर आपका ध्यान गया हो. तो व्हाट इज इंडेक्सिंग? हाँ, इंडेक्स सेट कर सकते हो आप. यू कैन सेट ऑन और ऑफ. विंडोज में सेटिंग्स के अंदर जाके आप पर्टिकुलर ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव जो भी है, उसकी इंडेक्सिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो. व्हेन यू एनेबल इंडेक्सिंग, योर ऑपरेटिंग सिस्टम विल जनरेट B+ tree. Your OS will generate B+ tree. So whenever you copy and paste something in your drive, it is going to do this task. Insert operation, वो insert operation करेगा. और अगर नोड स्प्लिट होता है तो एक नई की जनरेट करके अपनी इंडेक्स को अपडेट करेगा. सो लेटर ऑन जब आप सर्च करते हो, जब आप मूवी सर्च करते हो ड्राइव के अंदर, तो जल्दी फाइंड करेगा. क्यों? बिकॉज इट हैज दिस ट्री. Based on a key, it is going to search your value. So if you want to search your movie which has value 30, तो वो डायरेक्ट सर्च करने यहाँ पे आएगा और आपकी मूवी मिल जाएगी. You are simply neglecting this part, so search process gets faster. Now that's the application. तो जब मूवी देख लिया तो डिलीट करेंगे. So what happens when we delete a data? What happens when we delete data? We always go and delete data. हमें ये B+ tree दिखता ही नहीं, हमें इंडेक्स कभी दिखती ही नहीं. वो इंडेक्स तो OS मेंटेन करता है. So when you delete your data will always be in a bottom level leaf node. So you will go and search that value. वो वैल्यू आपको लीफ नोड में मिलेगी. अगर बीच में कहीं भी आपको वो सेम वैल्यू दिखती है देन इट इज की, इट इज नॉट अ डेटा. ठीक है? अगर इंटरनल नोड में आपको इक्वल मिलता है देन इट इज नॉट अ डेटा, इट इज अ की. इक्वल लेफ्ट साइड जाएंगे, we will find a node where we have data and that will be on a bottom level. ठीक है? So what happens? You search your data, it will be there in the leaf page. You delete that node, you delete that value. After deleting a value, minimum constraint check करो. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो काम खत्म, आसानी से डिलीट हो गया. बट इफ दैट लीफ नोड अंडरफ्लोज, मिनिमम वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे भी कम हो गया, तो क्या करेंगे? देन वी विल ब्रिंग डेटा फ्रॉम सिबलिंग. सेम वे लेफ्ट
सिबलिंग के पास जाओ, बोरो अ वैल्यू, नहीं है तो राइट सिबलिंग के पास जाओ, बोरो द वैल्यू. नाउ वी बोरो द वैल्यू वाया पेरेंट. अब बी ट्री में सब कुछ डेटा 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 ही था, तो ऊपर गया नीचे आया, राइट. लेकिन यहां पे नीचे डेटा ऊपर की है, तो ऊपर गया नीचे आया, ऐसे नहीं कर पाऊंगा मैं. हाँ, बट आई एम गोइंग टू अपडेट दैट इंडेक्स. प्रोसेस वही होगा भाई, ऊपर जा नीचे आ, लेकिन वैल्यू को लाके बीच का जो भी इंडेक्स वैल्यू है वो अपडेट करेंगे. वी विल अपडेट द इंडेक्स पेज वैल्यू. सो इट इज समथिंग लाइक, मान लो कि यू हैव 20 ऑन टॉप, you have values like 5, 10, 15 on left, and after you delete a value you only have 27 on right. After you delete some value, मान लो कि 23 था जिसको delete कर दिया. So once I delete a value, this node has a problem. If that node has a problem, तो आप क्या करोगे, you will go to left sibling and you will borrow the largest value. This should be connected because it is b plus. So हम क्या करेंगे भाई, we will borrow the 15 here. Now as a data it should be in a leaf, तो 15 को हम यहाँ पे लाएंगे, but this 15 cannot be on the right side of 20. So that's why we have to update the parent node, the index key, उसको हमें अपडेट करना होगा. अब अपडेट करके वहां पे लिखोगे क्या? What are you going to write there? इंसर्ट करते वक्त इक्वल को कहां पे रखा था? इंसर्ट करते वक्त आपने इक्वल वैल्यू को कहां पे रखा था? लेफ्ट साइड. I cannot have 15 here now. If you have decided that thing, भाई इक्वल को आप लेफ्ट रखोगे तो यहां पे 15 नहीं लिख पाओगे, you have to write 10. 15 के लेफ्ट में जो भी वैल्यू है उसको की बनाओ. अगेन, whatever value you have transferred, उसके लेफ्ट में जो वैल्यू थी, you make a key of that value. Okay, so that's how we update key on a parent node. हाँ, अगर इक्वल वैल्यू को आप राइट साइड पहले से ही रखते थे तो 15 डायरेक्ट की बन जाएगा, नो प्रॉब्लम. ओके, so what it says, if you delete data from leaf and if that leaf node has a problem, you bring your data from the sibling, and when you bring data from sibling you have to update your index value. की अपडेट करनी पड़ेगी, right? Now if none of the sibling is having enough value, लेफ्ट साइड गए उसने मना कर दिया, राइट साइड गए उसने भी मना कर दिया, तो क्या करेंगे? बी में क्या करते थे हम? बी ट्री में क्या करते थे हम? वी मर्ज टू नोड्स, दो नोड को मर्ज करो और पेरेंट को नीचे लाओ, क्योंकि वो डेटा था उसको नीचे ला देते. अब अगर यहां पे दो लीफ नोड को मर्ज करते हो तो पेरेंट में क्या है? की. अब अगर ये दोनों नोड मर्ज ही हो जाते हैं तो उसकी की जरूरी है? लेफ्ट राइट का जरूर है, पाथ नहीं है. सो इफ नन ऑफ द सिबलिंग इज हैविंग इनफ वैल्यू, then we merge leaf node and we simply remove the middle index value. की को डिलीट ही कर दोगे आप, you will simply remove that middle key. Okay, so still let's say if I go and delete
15। फिर से प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, वो जाएगा लेफ्ट सिबलिंग के पास, मना कर देगा वो जाएगा राइट सिबलिंग के पास, वो भी मना कर देगा। देन देयर इज नो वे, आई जस्ट नीड टू मर्ज दीज टू नोड्स। अगर दोनों को मर्ज करता हूं तो बीच में ये इंडेक्स की क्या जरूरत है फिर? तो वी सिंपली रिमूव मिडल की। मिडल की को हटा दो। सो व्हेन यू रिमूव दैट मिडल की, when you remove that middle key, ठीक है, एक पॉइंटर चलेगा, बट वंस यू रिमूव दैट की, उस पेरेंट नोड को भी चेक करो मिनिमम कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम है या नहीं। पेरेंट को भी चेक करो, अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो सेम प्रोसेस, लेफ्ट सिबलिंग राइट सिबलिंग, none of the sibling is having enough value, merge those two index pages, remove the middle value, middle key। तो इंडेक्स को मर्ज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब रूट वाला की डिलीट होगा देन हाइट विल डिक्रीज बाय 1। हाँ, बट if this is the case, parent has only one value, that is exceptional case, right? But it has two children, minimum 2 वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ओके, मिनिमम 2 वैल्यू है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अब यहां पे प्रॉब्लम हुआ, यहां पे भी 2 वैल्यू, यहां पे भी 2 वैल्यू, यहां पे भी 2 वैल्यू, डिलीट कर दिया तो 1 हो गई, नॉट अलाउड। क्या करूंगा मैं? मर्ज, तो पेरेंट से एक वैल्यू की, so it will be deleted, key will be deleted। तो अब पेरेंट नोड को प्रॉब्लम हो गया ना। रूट इज एक्सेप्शनल बट दिस इज नॉट अ रूट नोड, दिस इज इंटरनल नोड। ओके, दिस इज इंटरनल नोड, तो वो मिनिमम कंस्ट्रेंट फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो भाई नहीं कर रहा है, देन इट हैज अ प्रॉब्लम। इट गोज टू द लेफ्ट चाइल्ड, मतलब लेफ्ट सिबलिंग, इट गोज टू द राइट सिबलिंग, इनफ वैल्यूज नहीं है, तो क्या होगा? मर्ज इट। अगर इन दोनों को मर्ज करते हो तो 10 की जरूरत है, हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 1। सो सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू चेंज। जब भी कुछ डिलीट होता है तो मिनिमम चेक करो, नहीं है तो लेफ्ट सिबलिंग के, पहले लेफ्ट सिबलिंग के पास जाओ, नहीं है तो राइट सिबलिंग के पास जाओ, दोनों के पास नहीं है तभी हम मर्ज करेंगे और ऊपर से नीचे लाएंगे बी ट्री में। लेकिन बी प्लस में कभी नीचे नहीं आता, वो सिंपली रिमूव हो जाता है। तो अगर वो रिमूव होता है तो वहां भी चेक तो करना पड़ेगा, तो वो पेरेंट में चेक करो, प्रॉब्लम है तो लेफ्ट सिबलिंग राइट सिबलिंग, नन ऑफ द सिबलिंग इज हैविंग इनफ वैल्यू, मर्ज इट, उसका पेरेंट डिलीट। जब लास्ट में रूट नोड डिलीट हो जाएगा तो tree height will be decreased by 1. So that's all for today. We have seen B tree insert, B tree delete, and we have also seen B plus tree insert and delete operation. We'll stop here for today. Thank you for being part of this session. I've taken 5 more minutes, but sorry. In next lecture, we'll go and see 2-3 tree and weight balance trees. Thank you.